عمران خان ہے۔ ملک کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ جس لیڈر کا پیسہ اور جائیداد بیرون ملک ہو وہ کبھی کشمیریوں کے موقف کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میرا پیسہ بھی باہر ہوتا تو کبھی امریکہ کو ابسلوٹلی نوٹ نہ کہتا۔ کشمیر کا سفیر بن کر دنیا بھر میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑیں گے۔ سال کے آخر تک آزاد کشمیر کے ہر شہری کو مفت علاج کی سہولت میسر آئے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا باغ میں بڑے جلسے سے خطاب۔ پاکستان کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ سلامتی کا انحصار سائبر سیکیورٹی پر ہوگا۔ دفاع کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی میں مہارت ضروری ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی میں صلہ رحمی اور دردمندی کو مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ کو انٹرویو۔ افغان سرحد کے تمام قانونی کراسنگ پوائنٹس پر پاک فوج کے دستے تعینات۔ تمام غیر قانونی کراسنگ پوائنٹس سیل کر دیے گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار۔ افغانستان میں امن سے پورے خطے کی معیشت تبدیل ہوگی۔ وزیر اعظم نے بھرپور انداز میں کشمیر کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا۔ آزاد کشمیر الیکشن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پاس امیدوار ہی پورے نہیں، اسی لیے وہ دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے کوششیں تیز۔ دوحہ میں افغان سیاسی رہنماؤں اور طالبان کے درمیان مذاکرات۔ ملا عبدالغنی برادرز اور زلمے خلیلزاد شریک۔ طالبان کا قندھار کی ڈھنڈ اور اسپین ولدک علاقے پر قبضہ۔ افغان فوج کے سرکردہ کمانڈرز کی ہلاکت کی اطلاعات۔ داسو واقعے کی تحقیقات آخری مراحل میں۔ ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ چینی شہریوں کی سیکیورٹی مزید بہتر بنانے کی ہدایت کر دی۔ افغانستان میں ہمارا کوئی پسندیدہ نہیں، کوشش ہے وہاں امن قائم ہو۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی نیوز کانفرنس۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مناسک حج کی ادائیگی کا کل سے آغاز۔ 6000 حاضمین پر مشتمل گروپس تشکیل۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حاضمین حج لبیک اللہم لبیک کا ورد کرتے ہوئے مینا روانہ ہوں گے۔ 8 ذی الحج کا دن مینا میں 9 کو حج کے رکن اعظم وقوف عرفات کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ کرونا کے باعث رواں برس صرف 60,000 افراد حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ مقبوضہ علاقے پر بھارت کی ثقافتی جارحیت کو روکے۔ آبادی کا تناسب تبدیل کرنا کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ قابض انتظامیہ نے علاقے کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے سرکاری ملازمین کو برطرف کرنا شروع کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ ملک میں کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی۔ مثبت کیسز کی شرح 5.6% تک پہنچ گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 2783 نئے کیسز رپورٹ۔ مزید 39 افراد جام حق۔ ایسٹرازینیکا ویکسین کی ایک اور کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش۔ جانوروں کی خریداری کے لیے بھاؤ تاؤ عروج پر۔ گاہکوں اور بیوپاریوں کو مناسب ریٹ نہ ملنے کا شکوہ۔
कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच कल लीड्स में खेला जाएगा। मैच शाम 6:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 31 रन से कामयाबी हासिल की। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए कायम किए गए विलेज में पहला कोरोना केस सामने आ गया। कोरोना केस सामने आने से आइंदा हफ्ते शुरू होने वाले खेलों के कामयाब इनेकाद से मुतालिक खदशात में इजाफा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं सदफ अली खान और स्पोर्ट्स न्यूज के लिए मैं आपके साथ हूं मोहम्मद अनीस। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी बेटा। अब्बू वो मैं आज आपके MCB बर्क रफ्तार अकाउंट में पैसे भेज दूंगा। MCB बर्क रफ्तार के साथ अपनों की हर जरूरत पूरी करें फौरन। MCB बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB बैंक फॉर लाइफ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के लिए कोशा हैं और इसी नजरिए के तहत साल के आखिर तक हर कश्मीरी को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कर देंगे। बाग में जलसा आम से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि जिस लीडर का पैसा और जायदाद बैरून मुल्क हो वो कभी कश्मीरी अवाम के मौक़िफ़ के साथ खड़ा नहीं हो सकता। मेरा पैसा भी बाहर होता तो कभी अमरीका को अब्सोल्युटली नॉट ना कहता। तफसील जानेंगे अदील अहमद खान से। कश्मीर की जान है आप, इमरान खान है आप। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है और पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के हर दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क को फलाही रियासत बनाने के लिए कोशा है और साल के आखिर तक हर कश्मीरी को मुफ्त इलाज की सहूलत मुयस्सर आ जाएगी। जब एक हेल्थ इंश्योरेंस एक खानदान के पास होगी, 10 लाख रुपए पे किसी भी अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। आजाद कश्मीर में आप देखेंगे कि कामयाब पाकिस्तान वो मॉडल है जो आपके निचले तबके को ऊपर उठाएगा। हर खानदान में फिर टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी एक फर्द को कर्जे, एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन, ताकि वो घर में बैठे बैठे ख्वातीन पैसे बना सकती हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कोई भी कौम इंसाफ के निजाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। उनका कहना था कि जिस मुआशरे में कानून सब के लिए बराबर ना हो वो मुआशरे तबाह हो जाते हैं। ये जो आज आप तमाशा देख रहे हैं, सारे बड़े बड़े डाकू कभी कह रहे हैं आज हुकूमत गिराएंगे कल गिराएंगे, ये सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इमरान खान इनको NRO दे दे, इनके गुने माफ कर दे, इनके करप्शन माफ कर दे। ये है असल पाकिस्तान की जंग। इस वक्त हम अपने मुल्क के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जिहाद लड़ रहे हैं। ताकतवर को कानून के नीचे हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जिनका पैसा और जायदादें बैरून मुल्क हैं वो कभी भी कश्मीरियों के लिए आलमी सतह पर मुअस्सर आवाज नहीं उठा सकते। जिस पार्टी के लीडर का पैसा, उसकी जायदाद, उसकी बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है, वो कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। अगर मेरा पैसा बाहर हो, मेरे भी जायदादें बाहर हो, मैं कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट ना कह सकता। मकबूजा कश्मीर के असीर अवाम को सलाम पेश करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि वो कश्मीर का सफीर बनकर दुनिया भर में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ेंगे। मैं आज मकबूजा कश्मीर के
जो अजीम लोग हैं उनको आज मैं खास पैगाम देना चाहता हूं। जिस तरह आपने जुल्म के सामने आप खड़े हुए हैं, जिस तरह आपने खुददारी दिखाई, जिस तरह आपकी बुरहान वानी जैसे नौजवान जिन्होंने अपने जानों की कुर्बानियां दी हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आपको अप्रिशिएट किया जा रहा, सारी मुसलमान दुनिया आपकी तरफ देख रही है और आपके लिए दुआएं कर रही है। इनको इसी तरह सब्र और ताकत दे, इसी तरह इनको जज्बा दे खड़ा होने का। मैं आपको ये कहता हूं कि इंशाअल्लाह सारी दुनिया में आपका सफीर बन कर निकलूंगा, आपकी आवाज उठाऊंगा और उठाता जाऊंगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जब तक इमरान खान जिंदा हैं कोई माई का लाल कश्मीर का सौदा नहीं कर सकता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नून लीग की है, इंतजामिया नून लीग की और स्पीकर नून लीग का है, तो फिर धांधली का शोर क्यों मचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को अपनी हार का नहीं अपनी नाकामियों का खौफ है। वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फायरिंग और पथराव भी उन पर हुआ और पाबंदी भी उन पर लगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमेशा इन्हें अदारों के एहतराम का दर्स दिया है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि वो लोग भी कश्मीर में वोट मांग रहे हैं जिन्होंने मोदी से पगड़ियां तब्दील की थी। उन्होंने कहा कि वो कश्मीरियों के मोहसिन इमरान खान के लिए वोट मांगने आए हैं। तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा और उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास खान सरदार मीर अकबर खान ने भी जलसे से खिताब किया और कहा कि कश्मीरियों को इमरान खान की क़यादत से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। उन्होंने आलमी सतह पर मसला कश्मीर को मुअस्सर अंदाज में उजागर करने पर वजीर आज़म इमरान खान को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आज़म पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए ये वाज़ह किया कि मुकदमा कश्मीर हर फोरम पर भरपूर अंदाज में लड़ेंगे और कश्मीरियों की सफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जिला बाग, आज़ाद कश्मीर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि इसमें कोई मुबालगा नहीं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई शानदार है। मुस्तकबिल में सलामती का इन्हिसार साइबर सिक्योरिटी पर होगा। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग को इंटरव्यू देते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती और दिफा का इन्हिसार भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में महारत के शोबों पर होगा। उनका कहना था कि कोरोना वबा के दौरान स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी में सिला रहमी और दर्दमंदी को मरकजी हैसियत हासिल रही। अगली दहाई में पाकिस्तान इक़्तिसादी खुशहाली और जियो इकनॉमिक मरकज़ की हैसियत से दुनिया के मजबूत तरीन ममालिक में शामिल होगा। कोरोना वायरस की आलमगीर वबा पर काबू पाने में पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबियां मिली। In areas where smartness mattered, intellect mattered, resources were not as big an issue, Pakistan did a splendid job handling COVID-19. So I believe Pakistan has a brilliant future. I do not exaggerate that. I believe that if we are able to jump on this bandwagon, which is faster than fast, the future of security is related to cyber security, and I will not elaborate beyond that, but future of Pakistan's security and defense also relates to these areas now more than brick and mortar. सदर ममलिकत का कहना था कि किफ़ायत शारी के हवाले से लोगों के लिए रवैयों में तब्दीलियों की समत का तयन किया गया है। बदउनवानी के खिलाफ इक़दाम, किफ़ायत शारी और तेज़ फहम तस्वुरात ऐसे निकात हैं जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी में पेशरफ की ज़रूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से मसनूई ज़हानत और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में पेशरफ बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि चौथा सनती इनकलाब तेज़ी से वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा है। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के शोबे में पेशरफ्त हो रही है और मेरी ख्वाहिश है कि इस अमल को तेज़ी से आगे बढ़ाने में हमारे नौजवान और इदारे अपना फ़ाल और मौसर किरदार अदा करें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सरहद पर तमाम गैर कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट सील कर दिए हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट्स पर फौज के रेगुलर दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के किरदार और ऑपरेशन की तफसील इमरान मनसब खान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में गुज़िश्ता 20 साल के दौरान पाकिस्तानी अफवाज ने खुफिया इतलात पर मुश्तमिल 2,45,210 ऑपरेशन किए और दहशत गर्दों के मुतअद्दिद तरबियती मराकज़ और अड्डे तबाह किए। मिलिट्री ऑपरेशन में 46,500 मुरबा किलोमीटर इलाका बारूदी सुरंगों से क्लियर कराया गया और 18,000 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। दहशत गर्दी की हालिया वाक़यात का अफगानिस्तान की सूरत हाल से ताल्लुक है। रवां साल 1 मई से दहशत गर्दी के 167 वाक़यात हो चुके हैं, जिसके नतीजे में खुफिया इतलात की बुनियाद पर 7,000 तलाशी और मुहासरे के ऑपरेशन किए गए।
पाक अफगान सरहद पर तमाम गैर कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट्स को सील किया गया और पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तानी अफवाज की निगरानी और गश्त के निज़ाम को सख्त कर दिया गया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज अब तक ऑपरेशन खैबर फोर, ज़र्ब-ए-अज़्ब, रद्दुल फिज़ाद और कराची अमन ऑपरेशन कर चुकी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में भारी जानी और माली नुकसान उठा चुका है। 86,420 कीमती जानें ज़ाया हुई और 152 अरब डॉलर से ज़ायद का माली नुकसान हुआ। आलमी इत्तेहादी ममालिक से 53,036 मेमोज का तबादला भी किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने काबुल और दोहा के मुतअद्दिद दौरे किए। इंसदाद दहशतगर्दी का कानून बनाया गया। 2014 और 16 में पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट मंजूर किया गया। 2017 में आर्मी एक्ट में तरमीम की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल दहशतगर्दों और शख्सियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गयी। 2016 में इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम का एक्ट बना। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी बिरादरी से भी ताउन जारी रखा। अलकायदा के 1100 दहशतगर्द हलाक किए। पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी का सबसे वाज़ेह सबूत कलभूषण जाधव की सूरत में मौजूद है, जो कराची और बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का एतराफ भी कर चुका है। अफगानिस्तान में हालात खराब होने से सबसे ज्यादा मुतासर पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात के जरिए अफगान मसले के हल की जरूरत पर जोर दिया है। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए पाकिस्तान से ज्यादा किसी मुल्क ने किरदार अदा नहीं किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों कीमती जानें और अरबों डॉलर का नुकसान उठाने के बावजूद पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अमन अमल का ज़ामिन नहीं, अफगानिस्तान के अपने अफ्रीकैन को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा है। इमरान मसफ खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि अफगानिस्तान में उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक तमाम धड़े आपस में ना मिल बैठे। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अफगानिस्तान में कुछ अनासर दिल्ली से ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान की सरहद दिल्ली से नहीं, पाकिस्तान से मिलती है। विफाकी वज़ीर ने कहा कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान में अपना दहशतगर्द नेटवर्क रखना चाहता है। अगर अफगानिस्तान में अमन आता है तो हिंदुस्तान का दहशतगर्द नेटवर्क खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने अफगानिस्तान के साथ सरहद के 90% इलाके पर बाड़ लगा दी है और इस मरतबा अगर अफगान महाजरीन की आमद हुई तो पहले की तरह नहीं होगी। अफगान महाजरीन के लिए अलग बंदोबस्त करेंगे, पहले की तरह खुली छुट्टी नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में मजमूई तौर पर 45 नशस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के 8 और नून लीग के 15 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन दोनों जमातों के पास उम्मीदवार ही पूरे नहीं, जिसकी वजह से ये धांधली का शोर मचा रहे हैं। अफगानिस्तान में खून रेजी के खात्मे और पायदार अमन के लिए अफगान सियासी रहनुमा और तालिबान के दरमियान बंद कमरा मुज़ाकरात कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हुए। अफगान वफ़द की क़यादत अब्दुल्ला ने, जबकि तालिबान वफ़द की क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने की। अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी ज़ल्म खलीलज़ाद भी मुज़ाकरात में शरीक थे। साबिक़ सदर हामिद करज़ई ने, जिन्होंने हुकूमती वफ़द में शामिल होना था, काबुल से कतर रवाना न हुए। फरीकैन में मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब गैर मुल्की फौजों की रवानगी के बाद अफगानिस्तान बदतरीन खाना जंगी का शिकार है और तालिबान ने मुल्क के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। दरीर असना तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने कंधार के ढंड और स्पेन बुल्दिक अजला के वसी इलाके फतह कर लिए हैं। इस लड़ाई में अफगान फौज के सरकर्दा कमांडर्स की हलाकत की इतलात हैं। तालिबान ने निमरोज, गौर और सरेपुल सूबों में भी फौजी और ज़िला हेडक्वार्टर्स पर कब्जा कर लिया है। इन कार्रवाइयों में अफगान फोर्सेस ने बगैर किसी मज़ाहमत के हथियार डाल दिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और चीन के वज़ीर पब्लिक सिक्योरिटी ज़ाओ कीज़ेही के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों वज़रा के दरमियान दासू हाइड्रो पावर बस हादसे में अब तक होने वाली पेशरफ्त और तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने बस हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर बस हादसे की तहक़ीक़ात आला सतह पर जारी हैं और इसे बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। चीनी वज़ीर ज़ाओ कीज़ेही ने कहा कि बस हादसे में दोनों मुल्कों के शहरियों की जानों के ज़िया पर बहुत अफसोस है। दोनों वज़रा ने इस अज़्म का इजहार किया कि कोई भी शरपसंद ताकत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को ख़राब नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि दासू वाक़े की तहक़ीक़ात आखिरी मराहिल में है। सानहे में मुलव्वस मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला ने बताया कि कराकरम हाईवे हादसे में 13 कीमती जानें ज़ाया हुई और उन्होंने कहा कि हमें चीन की दोस्ती पर फ़ख्र है। सिक्योरिटी इदारों को हिदायत की है कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। चीन की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाते हैं कि इन कल्प्रिट्स को और इन छुपे हुए खुफिया हाथों को, इन सी पैक के दुश्मनों को और पाकिस्तान चीन दोस्ती के दुश्मनों को किसी कीमत पर माफ़ नहीं किया जाएगा।
اور پاکستان اور چین کی دوستی لازوال ہے اور اس میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑ سکتا. یہ حادثات اور حالات اور واقعات سے بالند ترین ہے. شیخ رشید احمد نے کہا کہ جعلی شناختی کارڈز کے اجرا کے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس سلسلے میں نادرا کے 10 ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے. ناظرین، مناسک حج کی ادائیگی کا آغاز کل سے ہو رہا ہے اور کورونا وبا کے باعث اس سال صرف 60,000 سعودی اور سعودی عرب میں موجود غیر ملکی افراد حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ان میں بڑی تعداد میں پاکستانی بھی شامل ہیں. کل نماز فجر کی ادائیگی کے بعد احرام میں ملبوس عازمین لبیک اللہم لبیک کا ورد کرتے ہوئے مینا روانہ ہوں گے اور 8 ذی الحج کا دن مینا میں گزاریں گے اور اگلے دن حج کے رکن اعظم وقوف عرفات کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوں گے. خطبہ حج کے بعد حجاج کرام ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے اور شام تک میدان عرفات میں ہی قیام کریں گے. غروب آفتاب کے وقت حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے اور رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے اور اللہ رب العزت کے حضور دعائیں مانگیں گے اور رمہ کے لیے کنکریاں جمع کریں گے. 10 ذی الحج کی صبح حجاج منا پہنچیں گے اور بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے. قربانی اور حلق کے بعد حجاج کرام احرام کھول دیں گے اور طواف زیارت کے لیے حرم شریف جائیں گے. طواف زیارت کے بعد حجاج کرام واپس منا جائیں گے جہاں وہ مزید 2 روز قیام کریں گے، عبادات کریں گے اور تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے. حرم شریف آمد سے قبل 6,000 عازمین پر مشتمل گروپس تشکیل دیے گئے ہیں جو ہر 3 گھنٹے بعد طواف قدوم کے لیے مسجد الحرام کی طرف روانہ کیے جا رہے ہیں. مناسک کے دوران عازمین حج کی سیکیورٹی کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جہاں سے مقامات مقدسہ کی جدید ٹیکنالوجی سے مانیٹرنگ کی جائے گی. کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر 24 گھنٹے کام کرے گا. سینٹر کے ذریعے زمینی اور فضائی نگرانی بھی کی جائے گی. کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا ہے کہ وہ مسلم اکثریتی ریاست جموں کشمیر پر بھارت کی ثقافتی جارحیت کو روکیں جس کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ابھی ہونا باقی ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر سے حریت ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ نریندر مودی کی فیصلہ حکومت نے مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دفعہ 370 اور 35A کو منسوخ کیا. انہوں نے کہا کہ اس مذموم ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے مسلم افسران کی جگہ ہندو بیوروکریسی نے لے لی ہے اور انتظامیہ کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے سرکاری ملازمین کو برطرف کرنا شروع کر دیا گیا ہے. مسلم کانفرنس کے چیئرمین شبیر احمد ڈار اور امپلائیز موومنٹ نے سری نگر سے اپنے بیانات میں افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت جموں و کشمیر پر اپنے غیر قانونی قبضے کو مضبوط کرنے کی خاطر مقامی لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے ہر صفاقانہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے. KMS کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آج جب دنیا بھر میں انصاف کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ریاستی عوام کو مسلسل بھارتی ظلم و تشدد کا سامنا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی تسلط سے آزادی کے حصول کے لیے اپنی جائز جدوجہد میں مصروف کشمیریوں کو دبانے کے لیے کالے قوانین کے تحت جواب دہی سے مستثنا بھارتی فوجی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں بلکہ جنگی جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں. وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں کے سفیر ہیں. انہوں نے اقوام متحدہ اور OIC سمیت ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا ہے. فیصل آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ مریم صفدر کشمیری عوام پر مودی کے مظالم اور اس کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات پر کیوں خاموش ہیں. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کشمیر کی انتخابی مہم میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم پر خاموش ہے. اگر مریم صفدر کو کشمیر کی بیٹی بننے کا شوق ہے تو ساڑیوں اور آموں کے تحفے بھی یاد رکھیں. ان کے والد نواز شریف جب بھارت گئے تو انہوں نے مودی کی خوشنودی کی خاطر حریت رہنماؤں سے ملاقات نہیں کی. وزیر مملکت نے کہا کہ وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ مودی RSS کے نظریات کا تاحیات حامی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بھی RSS کے نظریات حائل ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے وزیر مملکت نے کہا کہ عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن اب بھی خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں ہماری قیمتیں کم ہیں. ملک بھر میں کرونا کے کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو تشویشناک ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,783 نئے کیسز سامنے آئے ہیں.
مثبت کیسز کی شرح 5.6% تک پہنچ گئی ہے. اسی کی تفصیل جانیں گے ہما اقبال سے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 39 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد کورونا سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد 22,760 ہو گئی ہے. گزشتہ روز 49,247 ٹیسٹ کیے گئے اور 2,783 نئے کیسز سامنے آئے. ملک میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 22,759 ہو چکی ہے. 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1,000 مریض کورونا سے صحت یاب ہوئے، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 9,18,329 ہو گئی ہے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 4,55,079 ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر SOPs پر عمل درآمد میں لاپرواہی کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہے. اگر مستقبل میں لاک ڈاؤن کی بندشوں سے بچنا ہے تو SOPs پر عمل درآمد ناگزیر ہے. ملک بھر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل بھرپور انداز میں جاری ہے. روزانہ لاکھوں لوگ ویکسینیشن کے لیے رجسٹر ہو رہے ہیں. ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کسی بھی نادرا سینٹر سے یا ویب سائٹ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ویکسینیشن کے لیے جلد از جلد خود کو رجسٹر کروائیں تاکہ اس وبا سے محفوظ رہیں. ہما اقبال، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. بھارت میں کرونا وبا کی قسم ڈیلٹا تیزی سے پھیل رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 38,000 سے زیادہ نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 560 افراد جان کی بازی ہار گئے. بھارتی ریاست تامل ناڈو میں کرونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر لاک ڈاؤن 31 جولائی تک بڑھا دیا گیا ہے. سنیما ہال، سوئمنگ پول، سپورٹس، اجتماعات اور تفریحی مقامات بھی بند رہیں گے. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے مزید 5,63,000 افراد متاثر ہوئے، جبکہ مزید 8,584 افراد جان کی بازی ہار گئے. وائرس سے عالمی سطح پر اب تک 19 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 40,96,000 سے تجاوز کر گئی ہے. 17 کروڑ 37 لاکھ سے زائد افراد مہلک وائرس کو شکست دے کر صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران انڈونیشیا میں سب سے زیادہ 56,700 اور برازیل میں 52,800 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں. کورونا سے زیادہ متاثرہ ممالک میں امریکہ بدستور پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر موجود ہے. ناظرین، بین الاقوامی منڈیوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رواں سال کے آغاز سے اب تک 47% اضافہ ہوا، جبکہ پاکستان میں صرف 11.3% اضافہ کیا گیا ہے. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا زیادہ بوجھ خود برداشت کیا اور صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے. گزشتہ ماہ میں پیٹرولیم لیوی کو بتدریج کم کر کے 0 کر دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت کے آخری 6 ماہ میں فی لیٹر پیٹرول پر اوسط ٹیکس کی شرح 22.5 روپے تھی. موجودہ دور میں یہ شرح 11.5 روپے فی لیٹر ہے. اقتصادی ماہرین کے مطابق جنوری 2021 میں بین الاقوامی برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $51 تھی، جو جولائی 2021 میں 47% اضافے کے بعد $75 فی بیرل پر پہنچ چکی ہے. جنوری سے جولائی تک فی لیٹر پیٹرول کی قیمت محض 11.3% کی شرح سے اضافہ ہوا. بین الاقوامی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا بوجھ کم کرنے کے لیے حکومت ایندھن پر ٹیکس کی شرح مسلسل کم کر رہی ہے. ماہرین کے مطابق اگر پیٹرولیم لیوی دسمبر 2020 کے 30 روپیہ کی سطح پر رکھا جاتا تو حکومت کو تقریباً 200 ارب اضافی محصولات حاصل ہوتے. گزشتہ 7 ماہ میں پیٹرولیم لیوی کو بتدریج 0 کی سطح پر لایا گیا. اگر حکومت کرونا سے قبل IMF پروگراموں کے مطابق سیلز ٹیکس 17% اور لیوی کی شرح 15 روپے پر کرتی تو حکومت کو جولائی میں 27 ارب روپے حاصل ہوتے. اعداد و شمار کے مطابق حکومت نے صرف جولائی میں 27 ارب روپے کا بوجھ برداشت کیا ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے واقعے کا سخت نوٹس لیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ واقعے میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے. اپنے ٹویٹ میں وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ واقعے کی تحقیقات کو فوری اور پہلی ترجیح کے طور پر لیا جائے. وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا ہے کہ رواں ماہ کامیاب پاکستان پروگرام شروع کیا جا رہا ہے. وزیر خزانہ نے بتایا کہ پروگرام کے تحت آئندہ 3 برس میں 1.6 ٹریلین روپے فراہم کیے جائیں گے. پروگرام کا مقصد نچلی سطح پر 4.5 لاکھ گھرانوں کو قرض فراہم کرنا ہے. وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ پروگرام ریاست مدینہ کے اصولوں کے مطابق پاکستان کو فلاحی ریاست کے طور پر ترقی دینے میں حکومت کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے. چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کی قیادت میں سینیٹرز کے وفد نے لاہور میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی.
मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल और बैनुल-सूबाई हम आहंगी के फरोग के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द से बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान की सारी इकाइयाँ एक लड़ी में परोई हुई हैं और हमारे दुख सुख साझे हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब के साथ साथ दूसरे सूबे भी तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। चेयरमैन सेनेट और वफ्द ने बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के मंसूबों के लिए भरपूर ताउन पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन सेनेट की क़यादत में सेनेटर्स के वफ़द ने हज़रत सैयद अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाज़री दी और फातिहा ख़ानी की। वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन सेनेट ने इस मौके पर मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली, सलामती, इस्तेहकाम और कोरोना वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए खुसूसी दुआ की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वफ्द के हमरा स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से भी मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की काविशों से पंजाब तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। चेयरमैन सेनेट ने चौधरी परवेज़ इलाही के पंजाब से बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब कराने और सियासी अमल को मुस्बत अंदाज में मुकम्मल करने के अमल को सराहा। जंग किसी मसले का हल नहीं, तरक्की याफ्ता और पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते के देरपा अमन के लिए नागुज़ीर है। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने कोयटा में पाकिस्तान टेलीविजन को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में तमाम मुतहारिब ग्रुप मामलात को मुज़ाकरात और बातचीत से हल करें। आज़ाद और खुद मुख्तार अफगानिस्तान हमेशा से पाकिस्तान की ख्वाहिश है। हम चाहते हैं कि अफगान अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। अफगानिस्तान पुरअमन होगा तो पूरे खित्ते में तरक्की और खुशहाली आएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर के मसाइल हल करने के लिए चीफ मिनिस्टर स्पेशल प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। लाहौर में इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि लाहौर पाकिस्तान का दिल और मुआशी सरगर्मियों का अहम मरकज़ है। शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए जामे प्लान मुरतब करके फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि सड़कों की तामीर और मुरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स की बहाली, तजावुज़ात के खात्मे और सफाई के बेहतरीन इंतजामात के लिए मौसर मनसूबाबंदी करके अमली इक़दामात किए जाएँ। शहर में गदागरों के खिलाफ मौसर मुहिम चलाई जाए। ट्रैफिक और पार्किंग के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मरबूत प्लानिंग की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि लाहौर शहर की खूबसूरती पर खुसूसी तवज्जो देने और अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाने, पार्कों, ग्रीन बेल्ट और हार्टिकल्चर की बहाली के मंसूबों पर काम तेज किया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तजारत और सरमायाकारी अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि पाकिस्तान दुरुस्त सम्त पर गामज़न है और मेक इन पाकिस्तान हमारी इक़्तिसादी पॉलिसी का हिस्सा है। सियालकोट में ऐवान सनत और तजारत में ताजरों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा क़यादत की मस्बत मुआशी पॉलिसियों के बाइस सनती तरक्की में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि खाम माल और दिगर अशिया पर टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया है, जो तमाम टैरिफ लाइन्स का 50% है। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद बरामदात में इजाफा हो रहा है और सरमायाकारों की हौसला अफजाही की जा रही है। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने कौमी सलामती वर्कशॉप बलूचिस्तान की ख़ितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि वर्कशॉप के इनेकाद से बलूचिस्तान के मसाइल के बारे में बेहतर अफ़हाम व तफ़हीम हासिल करने में मदद मिली है। वर्कशॉप का मकसद बलूचिस्तान के हवाले से दरपेश चैलेंजेस और कौमी सलामती के बारे में इदराक करना है। इस मौके पर गवर्नर ने वर्कशॉप के शुरुका में असनाद तकसीम की। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ, जिसमें सिंध हेल्थ केयर सर्विस और सहूलियात फराहम करने के बिल समेत सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन एक्ट की मंजूरी दी गई। सूबाई काबीना ने फीस 100 किलो कॉटन पर 100 रुपए फीस वसूली की भी मंजूरी दी है और काबीना ने प्राइवेट कॉलेजेस को BS नर्सिंग के दाखिले करने की भी इजाज़त दी। काबीना ने चीनी सफारत खाने से मुत्तसिल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान टूरिज्म का प्लांट चीनी सफारत खाने को भी देने की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने नून लीग की नायब सदर मरियम सफदर के बयानात पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात में तशद्दुद के अंसर को फ़रोग़ दे रही है। उन्होंने कहा कि मरियम सफदर ऐसे हालात पैदा कर रही हैं ताकि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मनसूख हो जाएं। भारतीय जो इनके स्पॉन्सर है, उनके इमा के ऊपर मरियम सफदर उस राह पे लोगों को चला रही है और ऐसे हालात पैदा कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है, कश्मीर के अंदर इलेक्शन है, उनके अंदर जो है वो तशद्दुद आए और जिसकी वजह से वो इलेक्शन किसी तरह से मनसूख हो।
معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق خوان نے کہا ہے کہ نون لیگ کشمیر میں ریزہ ریزہ ہو چکی ہے. 25 جولائی کشمیریوں کی تقدیر بدلنے کا دن ہے. سیالکوٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے بھارتی RSS کی بدنام زمانہ آئیڈیالوجی کو دنیا کے سامنے رکھا اور پردہ چاک کیا. انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی زبان سے ایک بھی لفظ فاشسٹ مودی کے خلاف نہیں نکلا. کشمیریوں نے کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے والا ان کا بیانیہ مسترد کر دیا ہے. یہ الیکشن جو آزاد جموں کشمیر میں ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر کپتان کے چاہنے والے جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے PTI کی کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں. چیئرمین پاکستان علماء کونسل اور سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل تعظیم حرمین شریفین کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے اپنے ویڈیو پیغام میں اپیل کی ہے کہ تمام پاکستانی بالخصوص اور مسلمان بالعموم اجازت کے بغیر حج ادا کرنے کی کوشش نہ کریں. گرفتاری کی صورت میں آپ کو اور آپ کے اہل خانہ اور سفارت خانے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وبا کے خاتمے کے بعد تمام مسلمانوں کو اس سعادت کا موقع ملے گا. چیئرمین نیب ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال نے منصب سنبھالنے کے بعد ادارے میں متعدد اصلاحات متعارف کروائیں. اصلاحات کے باعث نیب کرپٹ عناصر سے 533 ارب روپے ریکور کروا چکا ہے. نیب اپنے قیام سے مارچ 2021 تک کل 4,87,964 شکایات میں سے 4,79,685 شکایات کو پایا تکمیل تک پہنچا چکا ہے. ریفرنسز میں نیب کی کامیابی کا تناسب 66% سے زائد ہے. پاکستان اور چین نے بدعنوانی کے تدارک کے لیے MOU پر بھی دستخط کیے ہیں. نیب کے اقدامات پر ملکی اور بین الاقوامی اداروں نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. قائد اعظم لائبریری لاہور علم کا ایسا بحر بیکراں ہے جس میں علم کے متلاشی دور دور سے اپنی علمی پیاس بجھانے آتے ہیں. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں وردہ سلیم کی رپورٹ. باغ جینا کے قدیم درختوں کی اوٹ میں قائد اعظم لائبریری اپنے اندر کتب کا ایک وسیع ذخیرہ سمیٹے ہوئے ہے. لائبریری کی عمارت بھی باغ جینا کے پرانے درختوں کی طرح منفرد حیثیت رکھتی ہے. اہل لاہور کبھی اس عمارت کو بطور جم خانہ استعمال کرتے تھے، تاہم تقریباً 3 دہائیاں پہلے اس عمارت کو تزئین و آرائش کر کے اسے باقاعدہ ایک لائبریری کا درجہ دیا گیا. 60,000 ممبرشپ ہے ہماری اور 60,000 لوگ یہاں سے پورے پاکستان سے مستفید ہوتے ہیں. سندھ سے، بلوچستان سے، KPK سے، آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے. مختلف تعلیمی شعبوں میں تعلیم و تحقیق کرنے والے اساتذہ اور طلبہ ان کتابوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. خاص طور پر PhD اور سول سروس سمیت مقابلے کے دوسرے امتحانوں کے لیے بھی اس لائبریری میں اعلیٰ پائے کا تعلیمی مواد موجود ہے. میں یہاں پہ PPSC کی تیاری کرنے کے لیے آتی ہوں اور یہاں کا ماحول بہت زیادہ اچھا ہے اور یہاں پہ تیاری بہت اچھی ہوتی ہے. میرے پلیٹ فارم کے حساب سے ہر وہ بکس ملی، چاہے وہ لٹریچر کی ہے، چاہے وہ انگلش کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو مجھے ہر وہ بکس اویلیبل ہوئی. مجھے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم یہاں پہ مختلف جو سبجیکٹس ہیں CSS کے اور ادر انٹرنیشنل سبجیکٹس ہیں ان کی تیاری کر سکتے ہیں. سائنس اور کمپیوٹر کے حوالے سے یہاں خصوصی شعبہ جات بھی قائم کیے گئے ہیں. باغ جینا لاہور کے خوشگوار ماحول میں یہ خوبصورت کتب خانہ ہمارے شاندار ماضی، تاریخی ورثے کی عکاسی کرتا ہے. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متعدد منصوبوں پر کام جاری ہے. پنجاب حکومت نے مانسون میں شجرکاری مہم کے دوران 5 کروڑ پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا ہے. تفصیل جانیں گے طاہر کلاسرا سے. انسانی زندگی میں جنگلات کی اہمیت کا کوئی نیم البدل نہیں. جنگلات ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور آکسیجن کی کمی کو پورا کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق پنجاب حکومت جنگلات میں اضافے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے. خدمت آپ کی دہلیز پروگرام کے تحت ہفتہ شجرکاری منایا جا رہا ہے، جس کے دوران 3,80,000 سے زائد پودے لگائے جائیں گے. ان پودوں کی مناسب دیکھ بھال کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مانیٹرنگ کے لیے نظام وضع کیا گیا ہے. ہمارا دوسرا پروگرام ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، جو ہے پلانٹ فار پاکستان، جو کہ اگست کے پہلے 1 اگست سے لے کے 7 اگست تک یہ پلان سٹارٹ ہوگا. اس میں ہم انشاءاللہ پلانٹیشن کریں گے تقریباً 4.5 لاکھ درخت کی.
महकमा जंगबाद मुख्तलिफ सेल पॉइंट पर 3,84,000 पौधे मुफ्त तकसीम करेगा। तमाम सरकारी महकमे इस मुहिम पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जबकि सिविल सोसाइटी और आम आदमी को भी इस मुहिम का हिस्सा बनाया जाएगा। दरख्त न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी खत्म करते हैं बल्कि शहरों की खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी ईद उल अज़हा की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र हुकूमत ने अवाम से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की है। ऐसे में खवातीन और बच्चों की ईद की तैयारी के हवाले से देखते हैं सदफ अफजल की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और इस मजहबी त्यौहार को मनाने के लिए हर कोई अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक शॉपिंग करता है, जिसमें खवातीन पेश होती हैं। मर्द हजरात जहां मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं, वहीं शॉपिंग मॉल्स में जूतों, कपड़ों और दीगर जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद SOPs पर अमल करते हुए अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ है। मैंने कपड़े और जूते ले लिए, अभी थोड़ी चीजें रहती हैं। मैं बकरा ईद के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हमने अभी वेड़ा लेना है, लेकिन उससे पहले हम बकरा ईद के लिए शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि बच्चों का शौक है वो तो पूरा करना है, और ईद है तो फिर बच्चों ने तो ज़रूरी है। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप SOPs का ख्याल रखें, बच्चे भी और बड़े भी। मैंने एक लहंगा लिया है और मैंने साथ में एक हील ली है। मैं मैसेज देती हूँ कि वो सब लोग मास्क पहन के रहें और डिस्टेंस में रहें। हम चाहते हैं कि ईद से पहले थोड़ा हमारा जो काम है वो ख़त्म हो जाए, मतलब शॉपिंग। कस्टमर जब इन होता है तो हम मास्क वेयर करवाते हैं। शॉप में जब क्राउड ज़्यादा हो जाता है तो हम कस्टमर को बाहर जो है स्टे करवाते हैं। आवाम को चाहिए कि ईद की शॉपिंग मुख्तलिफ औकात में करें, SOPs की पाबंदी करें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ जरूर मनाएं, मगर एहतियात सबसे पहले है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। फलाह बहबूद और कार खैर के कामों में पाकिस्तान का शुमार सफ़े अव्वल के ममालिक में होता है। नाज़रीन, ऐसे ही एक इदारे ने कराची की रौनकों की बहाली और ईद कुर्बां के रंग बिखेरने के लिए मेला सजाया है। तफसील जानेंगे ज़ीशान अहमद खान की रिपोर्ट में। 50 से 55 मन वजनी मवेशी मुकाबला जीतने वाला सिब्बी बैल लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जबकि तुर्की से आने वाले 2 कोहानों वाले ऊंट भी इन रौनकों की जीनत हैं, जबकि 4 सींगों वाले बकरे और सफेद ऊंट की बहुतात भी शहरियों को अपनी जानिब खींच रही है। सिब्बी का बैल स्पेशली हम इसको देखने आ रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं कि वहाँ पे आया हुआ, आप जाके देख। बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं और उनको सिखाना पड़ रहा है कि देखो ये मुस्तहिकीन के लिए है, तो यहाँ पे सब गोश्त मुस्तहिकीन में चला जाता है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बच्चे, अच्छा लग रहा है उन लोगों को जानवर देख के। ऐसे तो मतलब निकलते नहीं है बच्चे, तो अभी जरा ईद की वजह से ये जानवर आते हैं तो एक माहौल होता है। सारी मुस्तहिकीन के लिए जो जानवर हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सही बात है। मैं तो खुद लोगों से ये अपील करूंगी कि वो आएँ और जितना हो सके वो इन लोगों का साथ दें। मैंने अभी ये देखे हैं बकरे 4 सिंगों वाले, और वहाँ मैंने गाय देखे हैं बहुत सारे, और ये वाली दोनों भी मुझे बहुत प्यारी लगी, और अभी मैंने और भी ऊँट देखे हैं। निजी फलाही इदारे के रूह रवा का कहना है कि ईद कुर्बा के मौके पर वक्फ किए गए इन तमाम जानवरों का गोश्त गरीब और मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाएगा। कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन का इनेकाद किया जाता है। इसके अंदर लोग पूरे जानवर देते हैं और इंतहाई खूबसूरत जानवर देते हैं। 5-5 किलो और 4-4 किलो के पैकेट बना के गोश्त के गरीब बस्तियों में बिला तफरीक हर घर में गोश्त दिया जाता है। कराची में चांद बैल, सिब्बी बैल और दीगर मवेशियों की आमद लोगों की खुशियों में इजाफे का बाइस बन रही है। ईद कुर्बा हमें दर्ज देता है इसार, मसावात और एक दूसरे का ख्याल रखने का। इस ईद पर अपनी खुशियों में उनको भी शामिल कीजिए जो इन खुशियों के हकदार हैं। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, अगर जानवरों को भी सलीके से सुधाया जाए तो वो भी दिलचस्प आदात से इंसानों को महसूस कर सकते हैं। लाहौर के रहायशी ने एक ऐसा बकरा पाल रखा है जो हैरत अंगेज हरकतों से लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। लाहौर से वर्दा सलीम की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। इंसानी रवैये और हरकत किस तरह जानवरों पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं, ये देखना है लाहौर के रहायशी के इस पालतू बकरे में, जो आने वालों को सलाम करता है और आगे बढ़कर हाथ भी मिलाता है। अल्लाह की राह में देना है। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि इसको हमें दे दो, हमारे से पैसे ले लो, आप ये बताओ आप कितने पैसे मांगते हो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देना। यहाँ तक कि ब्लैंक चेक मुझे मिला, मैंने नहीं दिया। हर खाना अच्छे से अच्छा
जो हम लोग भी खा सकते हैं, जानवर भी खा सकते हैं, वो भी देते हैं हमें से। और जो इसका अच्छी से अच्छी बेहतरीन ग्रोथ बढ़ाता है वो भी देते हैं हमें से। ब्राउन रंग और जिल्द पर सफेद धब्बों वाला ये खूबसूरत बकरा जैसे घर वालों के लिए VIP से कम नहीं। बच्चे बड़े सब इसके साथ खेलते हैं और इसको मुख्तलिफ आदात भी सिखाते हैं। घर वाले इसे प्यार से बादल कहते हैं जो खुशियों की मानित उन पर बरसता है। मोहब्बत एक ऐसी जुबान है जो इंसान ही नहीं जानवर भी समझते हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी रह गए हैं। सूबा सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी बहुत बड़ी मवेशी मंडी कायम की गई है, जहां मुख्तलिफ नस्ल के खूबसूरत और सेहतमंद जानवर मरकज़ निगाह हैं। तफसील जानेंगे शिराज अली डहरी की रिपोर्ट में। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए सेहतमंद और खूबसूरत जानवर खरीदने के लिए हैदराबाद में भी बहुत बड़ी मवेशी मंडी कायम की गई है, जहां लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से व्यापारी उम्दा नस्ल के बैल, ऊंट, बकरे और दुम्बे ईद कुर्बा के लिए मवेशी मंडी में ला रहे हैं। इन जानवरों को साल भर खुसूसी खुराक दी जाती है ताकि सेहतमंद और मुनफरिद नजर आए। माल तो बहुत है लेकिन अभी कीमतें जो हैं वो खरीदार की पहुँच से निकल गई हैं आगे, तो हम भी लेने के लिए आए हैं। देखें अल्लाह मालिक है, सौदा बंदा तो लेते हैं। जानवर तो बेहिसाब है, लेकिन लोगों ने जिस हिसाब से पैसे मांगना शुरू किए हैं ये तो पहुंच से दूर होती जा रही है। मवेशी मंडी में जानवर खरीदने के लिए सब मसरूफ नजर आ रहे हैं, ताहम सबकी कोशिश है कि कम कीमत में उन्हें अपनी पसंद का खूबसूरत और भारी भरकम जानवर मिल सके। मवेशी मंडी में ज्यादातर व्यापारियों का कहना है कि साल भर इन जानवरों की खुराक पर कसीर रकम खर्च हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी कीमतें आम जानवरों से ज्यादा हैं। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। नाज़रीन, मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह डेरा मुराद जमाली में भी ईद कुर्बा के लिए मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव उरूज पर है। मंडी में कुर्बानी के जानवरों की कीमतों के हवाले से खरीदार और व्यापारी दोनों ही मुनासिब रेट न मिलने का शिकवा कर रहे हैं। तफसील बता रहे हैं डेरा मुराद जमाली से अली जान मंकी। ईद कुर्बान के करीब आते ही डेरा मुराद जमाली में मवेशी मंडी लग गई है। 9 इलाकों से व्यापारी फरोख्त करने के लिए अपने जानवर लेकर पहुंच गए हैं, जबकि खरीदारों की बड़ी तादाद भी जानवर की खरीदारी के लिए मंडी का रुख कर रही है। मवेशी मंडी में कुर्बानी के लिए हर तरह का जानवर मौजूद है। अच्छे से अच्छा जानवर खरीदने के ख्वाहिशमंद खरीदारों को मंडी में बकरों की ज्यादा कीमत का गिला है। दफा महंगाई उरूज से बढ़ गए, माल हमको परेशान किए मंडी ने। यकीन करो पिछले साल जो 80 का लेते थे इस साल 1,20,000 का। दूर दराज के इलाकों से जानवर लेकर मवेशी मंडी में आने वाले व्यापारी हजरात को मवेशी मंडी में आने वाले खरीदारों की तरफ से कीमत खरीद से भी कम कीमत का शिकवा है। हालात बहुत ऐसे देख रहे हैं, कोई कुछ समझ में काम नहीं कर रहे हैं। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक बैल चल रहे हैं यहाँ पे। मवेशी मंडी में बहुत से ऐसे भी जानवर लाए गए हैं जो देखने में इंतहाई खूबसूरत हैं, लेकिन इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अलीजान मंगी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डेरा मुराद जमाली। नाज़रीन, मारूफ टीवी अदाकारा नायला जाफरी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा में अहल खाना, शोबा फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अदाकारा कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी। नायला जाफरी रेडियो और टीवी पर यकसा मकबूल थीं। उन्होंने PTV पर 1986 में ड्रामा हादिसों के मुंतज़िर से अदाकारी का आगाज़ किया। उन्होंने मुतादिद मशहूर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। आगे बढ़ेंगे, खबर आप तक पहुंचा कि पाकिस्तान के नामवर मज़ाहिया अदाकार अलबेला को हमसे रुखसत हुए 16 बरस बीत गए हैं, लेकिन उनकी बर्जस्ता अदाकारी और मज़ाह से भरपूर जुमले आज भी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देते हैं। अदाकार अलबेला का असल नाम अख्तर हुसैन था। उन्होंने 200 से ज़ायद थिएटर ड्रामों में काम किया। उन्हें टीवी के मशहूर खेल एक सी बादशाह में शानदार अदाकारी पर खूब शोहरत मिली। उन्होंने स्टेज और फिल्म में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। अदाकार अमानुल्लाह और अलबेला की जोड़ी ने स्टेज ड्रामों में अपनी अदाकारी से बेपनाह मकबूलियत हासिल की। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों के बाद मुतालिका इदारों ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हालिया शदीद बारिशों से मकानों की छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 12 से ज़ायद अफराद जाँ बहक जबकि 10 ज़ख्मी हुए। हालिया मानसून बारिशों से बलूचिस्तान में बड़े और छोटे डैम्स पानी से भर गए हैं। ये अमर बाइस इत्मीनान है कि हालिया बारिशों के ज़राअत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे और ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर में भी इजाफा होगा।
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران دن کے اوقات میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم رات کے اوقات میں اسلام آباد، خطہ پوٹھوار، بالائی پنجاب، بالائی و وسطی خیبر پختونخوا، زیریں سندھ، زیریں بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔